کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے، اسے نا شدید علاج کی ضرورت ہے۔ چلو ایک کام کرو، ایک بات یاد رکھنا، تم اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو، لیکن کہیں ایسا خون کی کشش بیوی کی محبت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، بیوی کے بجائے بہن کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس بار عبدالباری میں یہاں پچھلی باتوں پر تبصرہ کرنے نہیں آئی ہوں، مجھے تو اس کی فکر کھینچ لائی ہے جو اس دنیا میں آنے والا ہے۔ خون کتنی دراڑیں آئیں دلوں، ٹھیک سمجھی ہو، اب جاؤ جا کر عبدالباری کو بتا دو، پھر دیکھو کہ وہ تمہاری بات پر یقین کرتا ہے یا میری۔ ہمارے درمیان تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ ہمارے کچھ ٹھیک نہیں ہے ہمارے درمیان، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تم فکر مت کرو، یہ تمہاری پڑھائی کا آخری سال ہے کشف، اور میں تمہاری پڑھائی کا حرج تھوڑی ہونے دوں گی، میں اور نسیم گھر کا سارا کام سنبھال لیں گے۔ عبدالباری لے جاؤ اسے، جاؤ کشف، جاؤ کشف۔ ہمیں ان لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ وہ بھول گئی ہیں آپ جو حرکتیں رضا نے سائرہ کے ساتھ کی ہیں؟ مطلب بس خاموش ہو کر بیٹھے رہیں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کریں گے؟ مطلب اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ایسا آپ سوچ رہے ہیں نا نعیم صاحب، ایک باپ کا اپنی اولاد پر حق، اس پر پورا حق ہے اس کا۔ رضا اس بچے کا باپ ہے، اور اس حقیقت کو نہ تو آپ جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ۔ شمائلہ اور رضا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہیں گے، اسی لیے رضا شمائلہ کو لے کے نئے گھر میں جانا چاہتا ہے۔ جب وہ دونوں فلیٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو شمائلہ کو فلیٹ پسند آ جاتا ہے جن کا رینٹ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے۔ بہرحال رضا شمائلہ کی خواہش کے مطابق اس فلیٹ کو بک کروا لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ATM پہ جا کے پیسے نکلوانے لگتے ہیں تو یہ نیوز ان کے لیے شاکنگ ہوتی ہے کہ ان کے تمام ATM کارڈ بلاک ہو چکے ہیں اور وہ 1 روپیہ بھی وہاں سے نہیں نکلوا سکتے۔ رضا واپس آ کے شمائلہ سے کہے گا کہ ہم یہاں پہ اب نہیں رہ سکتے، میں اتنے زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو شمائلہ کہے گی تم خود ہی مجھے گھر دکھانے کے لیے لے کے آئے تھے، اب جب مجھے پسند آ گیا ہے تو تم یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں راضی ہو رہے ہو۔ تو رضا کہے گا کہ سارے کارڈ ابا جی نے بلاک کروا دیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں، میں اتنا مہنگا فلیٹ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اب ہمیں مجبوراً واپس اسی گھر میں جانا ہوگا جیسے تیسے کر کے۔ شمائلہ کہے گی تمہارے گھر والے تو تمہیں کبھی بھی اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے تو انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شمیم کو شک ہو گیا ہے کہ آخرکار عبدالباری اور کشف کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوئی ہے جو کشف کا کافی موڈ آف ہے۔ تو وہ نسیم سے جب پوچھتی ہے تو نسیم بتائے گی کہ عبدالباری اور کشف کی لڑائی ہوئی تھی آپ کو لے کے۔ شمیم کہے گی مجھے لے کے میں نے کیا کیا ہے؟ تبھی نسیم بتائے گی اس دن جب آپ کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو عبدالباری نے دیکھ لیا اور اس نے جا کے کشف کو ڈانٹا کہ تم نے آپا کی ہیلپ کیوں نہیں کروائی، تمہیں چاہیے تھا کہ دونوں مل کے کھانا بنا رہی تھی، اسی وجہ سے کشف کا موڈ آف تھا۔ عبدالباری کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، تو جب وہ کمرے میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ کشف نے وہ گجرے اتار کے پھینک دیے ہیں جو کہ عبدالباری بڑی محبت اور چاو سے لے کے آیا تھا۔ عبدالباری کشف سے سوری مانگے گا اور کہے گا کہ اسے ایک دفعہ معاف کر دے، دوبارہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔
तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशिफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है? अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ। चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशिफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा शुमाइला सकती हो, और रज़ा तुम्हें फैसला कोई कर नहीं लेते हैं रोकेगा। कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ATM पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ उनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम ATM कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशिफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशिफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशिफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है? तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशिफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशिफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशिफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशिफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशिफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है? अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ। चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो।
शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कश्यप अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है, जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ATM पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम ATM कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कश्यप के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कश्यप का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कश्यप की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कश्यप को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कश्यप का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कश्यप ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कश्यप से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कश्यप अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कश्यप को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ, चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कश्यप अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है।
वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली। लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते तो हैं तुम कि यहाँ अब वो से इस घर जा में सकती नहीं हो, रहेंगे, तुम्हें कोई इसीलिए नहीं रज़ा रोकेगा। शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है, जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एटीएम पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते हो शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ, चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली। लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती,
जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एटीएम पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ, चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे। तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एटीएम पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने
ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे क्लाउड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं। मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशिफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशिफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशिफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशिफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशिफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशिफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशिफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशिफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ, चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशिफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे। तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है शुमाइला ठीक और रज़ा नहीं फैसला तो कर तुम लेते यहाँ हैं से कि अब जा इस घर में सकती हो, नहीं तुम्हें कोई रहेंगे, नहीं इसीलिए रोकेगा। रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एटीएम पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे क्लाउड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशिफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशिफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है
तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ। चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एटीएम पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा।
तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी, तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशिफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है? अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी, देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ। चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशिफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा शुमाइला सकती हो, और रज़ा तुम्हें कोई फैसला नहीं कर लेते हैं रोकेगा। कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एटीएम पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ उनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी, तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी